جیسے کہ آج کا سلسلہ پہلا سلسلہ، اس میں ایک تو ہم نبی کی تعریف، نبی کہتے کس کو ہیں، انبیاء کی تعداد کیا ہے، ان پر نازل ہونے والی کتابوں کو کیا کہا جاتا ہے۔ ناظرین، کائنات کی سب سے عظیم ہستیاں، شاندار شخصیات، انبیاء کرام، سبحان اللہ۔ آج انبیاء کرام کا ذکر خیر بھی ہوگا، اور پھر سلسلے کا جو پہلا ہمارا ایپیسوڈ ہے تخلیق آدم، اس پر بھی بات کریں گے۔ نبی اور رسول کی تعریف، ذرا آج ڈیفینیشن بھی سمجھ لیجئے۔ نبی اس بشر یعنی انسان کو کہتے ہیں جس کی طرف اللہ تعالیٰ نے مخلوق کی ہدایت و رہنمائی کے لیے وحی بھیجی ہو، اور ان میں سے جو نئی شریعت یعنی اسلامی قوانین اور خدائی احکام لے کر آئے ہوں، اسے رسول کہتے ہیں۔ تو یہ تعریف ہمیں پتہ ہونی چاہیے۔ اب وحی کی تعریف بھی سمجھ لیں۔ نبی ہونے کے لیے اس پر وحی ہونا ضروری ہے، خواہ فرشتے کی معرفت ہو یا بلا واسطہ۔ اور وحی کا لغوی معنی کیا ہے؟ پیغام بھیجنا، دل میں بات ڈالنا، خفیہ بات کرنا۔ اور شریعت کی اصطلاح میں، شریعت کی ٹرمینالوجی میں وحی کی کیا ڈیفینیشن ہے؟ اس کی اصطلاح میں یہ معنی بنتا ہے کہ وحی وہ خاص قسم کا کلام ہے جو کسی نبی پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا ہو۔ نیز وحی نبوت انبیاء کے لیے خاص ہے، جو اسے کسی غیر نبی کے لیے مانے وہ کافر ہے، یاد رکھیے گا۔ اچھا، اب وحی کی بھی صورتیں ہیں، سبحان اللہ، اللہ کریم کے کرم نوازی کے انداز ہیں۔ اب یاد رہے کہ دنیا میں کسی آدمی کے لیے ممکن نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے کلام فرمائے۔ البتہ 3 صورتیں ایسی ہیں جن میں کسی فرد بشر سے کلام ممکن ہے۔ وہ 3 صورتیں کیا ہیں؟ نمبر 1، وحی کے طور پر، یعنی اللہ تعالیٰ کسی واسطے کے بغیر اس کے دل میں القاء فرما دے، یا بیداری یا خواب میں الہام کر کے کلام فرمائے۔ اس صورت میں وحی کا پہنچنا جو ہے فرشتے اور سماعت کے واسطے کے بغیر ہے۔ اس میں یہ قید نہیں ہے کہ اس حال میں جس کی طرف وحی کی گئی ہو وہ کلام فرمانے والے کو دیکھتا ہو یا نہ دیکھتا ہو۔ یہ ایک صورت ہو گئی۔ امام مجاہد رحمۃ اللہ تعالی سے منقول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کے سینہ مبارک میں زبور کی وحی فرمائی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فرزند ذبح کرنے کی خواب میں وحی فرمائی، اور ہمارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے معراج میں اس طرح وحی کی گئی کہ جس کا فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى میں بیان ہے۔ یہ سب اسی قسم میں داخل ہیں۔ انبیاء کرام علیہ السلام کے خواب حق ہوتے ہیں، جیسا کہ حدیث شریف میں ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کے خواب وحی ہے۔ تو یہ وحی کی پہلی قسم ہو گئی۔ دوسری قسم کیا ہے؟ وہ آدمی عظمت کے پردے کے پیچھے ہو، یعنی رسول جو ہے پسے پردہ اللہ تعالیٰ کا کلام سنے۔ وحی کے اس طریقے میں بھی کوئی واسطہ نہیں ہے، لیکن سننے والے کو اس حال میں کلام فرمانے والے کا دیدار نہیں ہوتا۔ جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے کلام سے مشرف فرمائے گئے، مگر یہاں یہ مسئلہ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے کہ اس کے لیے کوئی ایسا پردہ ہو جیسا جسم اور جسمانی چیزوں کے لیے ہوتا ہے، سبحان اللہ۔ اچھا، اب تیسری قسم، اللہ تعالیٰ کوئی فرشتہ بھیجے اور وہ فرشتہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے وحی پہنچائے۔ وحی کے اس طریقے میں رسول کی طرف وحی پہنچنے میں فرشتہ جو ہے وہ واسطہ ہے۔ تو یہ وحی کی 3 قسمیں بیان ہوئی، نبی اور رسول کی آپ نے تعریف سنی۔ اب ایک کوسچن پیدا ہوتا ہے کہ انبیاء اور مرسلین کی تعداد کتنی ہے، کوانٹٹی کتنی ہے؟ انبیاء اور مرسلین کی تعداد کے بارے میں مختلف روایات ہیں، اس لیے ان کی صحیح تعداد اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ ہمارے لیے حکم یہ ہے کہ ہم ان کی کوئی تعداد معین نہ کریں، پرٹیکولرلی کسی تعداد کو فکس نہ کریں، کہ معین تعداد کسی پرٹیکولر فکس کوانٹٹی پر ایمان لانے سے کسی نبی کی نبوت کا انکار بھی ہو سکتا ہے، اور کسی غیر نبی کو مان لینے کا احتمال بھی ہو سکتا ہے۔ یہ دونوں باتیں بذات خود کفر ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اب حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک بہت سارے انبیاء تشریف لائے، البتہ 27 انبیاء ایسے ہیں جن کا ذکر قرآن میں موجود ہے۔ ہاں، ان 27 انبیاء کے نام آج سن لیجئے۔ نمبر 1 حضرت آدم علیہ السلام، نمبر 2 حضرت نوح علیہ السلام، نمبر 3 حضرت ابراہیم علیہ السلام، نمبر 4 حضرت اسماعیل علیہ السلام، نمبر 5 حضرت اسحاق علیہ السلام، نمبر 6 حضرت یعقوب علیہ السلام، نمبر 7 حضرت یوسف علیہ السلام، نمبر 8 حضرت موسیٰ علیہ السلام، نمبر 9 حضرت ہارون علیہ السلام، نمبر 10 حضرت خضر علیہ السلام، ایک راجے قول کے مطابق یہ بھی نبی ہے، نمبر 11 حضرت شعیب علیہ السلام، نمبر 12 حضرت لوط علیہ السلام، نمبر 13 حضرت ہود علیہ السلام، نمبر 14 حضرت داؤد علیہ السلام، نمبر 15 حضرت سلیمان علیہ السلام، نمبر 16 حضرت ایوب علیہ السلام، 17 حضرت زکریا علیہ السلام، نمبر 18 حضرت یحییٰ علیہ السلام، نمبر 19 حضرت عیسیٰ علیہ السلام، نمبر 20 حضرت الیاس علیہ السلام، نمبر 21 حضرت یسع علیہ السلام، نمبر 22 حضرت یونس علیہ السلام، نمبر 23 حضرت ادریس علیہ السلام، نمبر 24 حضرت ذوالکفل علیہ السلام، نمبر 25 حضرت صالح علیہ السلام، 26 حضرت عزیر علیہ السلام، اور 27 جناب خاتم الانبیاء جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آقا علیہ السلام۔ اچھا، اس کے علاوہ تورات میں حضرت شیس علیہ السلام، حضرت دانیال علیہ السلام، حضرت یوشع علیہ السلام، حضرت شمویل علیہ السلام، حضرت ارمیہ علیہ السلام اور حضرت شعیاء علیہ السلام کے مبارک نام بھی مذکور ہیں۔ یعنی بہت سارے انبیاء میں
जो नाम हम तक पहुंचे हैं वो गिनती के चंद ही नाम हैं, और फिर उनकी सीरत के बारे में भी ऑथेंटिक मालूमात मिलना ये इतना आसान नहीं है। अल्लाह सलामत रखे दावत इस्लामी के इस प्यारे माहौल को और किबला मुफ्ती कासिम साहब को, जिन्होंने कलम उठाया और हमारी ये बहुत बड़ी एक जो गैप था, मुश्किल थी, ये आसान कर दी, और अब एक ऐसी किताब अता फरमाई है कि आज हम ये कह सकते हैं कि उर्दू जबान की मोस्ट ऑथेंटिक बुक जो अंबिया किराम के बारे में हमें रहनुमाई देती है वो अब हमें मिल चुकी है। और सच्ची बात तो यह है कि जब ये किताब हाथ में आई तो हिम्मत बढ़ी कि इस मौजू पर कोई सिलसिला किया जा सकता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी इस पूरे तमाम सिलसिलों में आगे इंशाअल्लाह ये किताब हमारी यूं समझिए कि हमारा माखज होगा, हमारा यूं समझिए हमारा सोर्स ऑफ नॉलेज होगा। और मैं यहाँ गुजारिश करूंगा कि तमाम मदनी चैनल के नाज़रीन, तमाम व्यूअर्स, ये हर घर में होनी चाहिए। इट्स अमेजिंग बुक, बड़ी शानदार तरीके से किताब लिखी गई है। और ये किताब अल्हम्दुलिल्लाह अंबिया किराम का इसमें जिक्र खैर है, कायनात की अजीम हस्तियों की जिसको बायोग्राफी कहते हैं। अब मैं यहाँ ये चाहूंगा कि आज पहला सिलसिला भी है अंबिया और मुरसलीन पर हम बात कर रहे हैं, और हमने वही के कुछ तरीकों पर भी बात की, अंबिया के अस्मा पर भी बात की। आप क्या फरमाएंगे? जी, अंबिया किराम की अगर हैसियत देखी जाए, अल्लामा काजी हयाज मालकी रहमतुल्लाह ताला ने शिफा शरीफ में जब अंबिया किराम की अजमत व शान का बयान फरमाया तो वहाँ जिक्र किया कि अंबिया को देखा जाए तो वो खालिक और मखलूक के दरमियान वास्ता हैं। यानी अल्लाह तबारक व ताला का कलाम बंदों तक पहुँचना, क्योंकि आम शख्स अल्लाह तबारक व ताला से हम कलाम नहीं हो सकता, और इसी तरह अल्लाह ताला के अहकामात आम बंदे तक पहुँचना, रब तबारक व ताला की जनाब से फैज़ पहुँचना, ये डायरेक्ट आवाम के एतबार से, लोगों मखलूक के एतबार से मुमकिन नहीं था। मखलूक में इतनी सकत नहीं थी, और अगर बीच में फरिश्ते को वास्ता बनाया जाता तो इंसान ऐसी मखलूक है जो फरिश्ते से भी डायरेक्ट राब्ता कायम नहीं कर सकती। तो ये अल्लाह ताला ने मखलूक पर फजल फरमाया कि उन तक हिदायत पहुंचाने के लिए, अपने अहकाम पहुंचाने के लिए, अपना फैज़ पहुंचाने के लिए अंबिया को वास्ता और वसीला बनाया है। तो अल्लाह की बारगाह में पहुंचने का, अल्लाह की मार्फत हासिल करने का और रब के अहकामात हम तक पहुंचने का अटल वसीला और वास्ता ये अंबिया किराम की ज़ात है। और माशाअल्लाह आपने उनका जिक्र किया जिनके अस्माए गिरामी कुरान मजीद में है। अंबिया किराम के हवाले से एक बुनियादी बात जो हमारा एक इस्लामी अकीदा भी है, उससे मैं गुफ्तगू की इब्तिदा करता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला ने जितने भी अंबिया दुनिया में भेजे, मबूस फरमाए, रसूल आए, इनके बारे में एक इस्लामी अकीदा नजरिया यह है कि ये सारे अंबिया मासूम हैं। एक इस्मत, एक सिफत है जो अल्लाह ताला ने एक तो मलाइका को अता की है, जितने फरिश्ते हैं वो मासूम हैं, और इंसानों में, बशर में सिर्फ अंबिया किराम, नबी और रसूल जो हैं ये मासूम हैं। मासूम का आम लफ्जों में ये मफहूम बनेगा कि वो जात, वो बंदा जिससे अल्लाह ताला की नाफरमानी होना ये नामुमकिन हो, अल्लाह ताला ने उसको ऐसा मकाम अता कर दिया हो कि उससे गुनाह का सुदूर होना, अल्लाह ताला की नाफरमानी सादिर होना ये नामुमकिन हो। तो ये हमारा अकीदा है, इस्लामी अकीदा है कि फरिश्ते और इंसानों में सिर्फ नबी और रसूल जो है ये मासूम होते हैं। इनके अलावा जो सहाबा किराम हैं, अहले बैत अतहार हैं, या क़यामत तक आने वाले औलिया किराम हैं, तो वो महफूज हैं, उन्हें महफूज अनिल खता कहा जाता है। यानी उनसे गुनाह होना मुमकिन तो है, पॉसिबल तो है, लेकिन अल्लाह ताला अपने खास बंदों को शैतान के शर से महफूज रखता है, तो वो गुनाहों से महफूज रहते हैं। और अगर अल्लाह के किसी नेक बंदे से कोई नाफरमानी सरजद हो जाए बतकाज़ा बशरियत, तो अल्लाह ताला उनको फौरन तौबा और रुजू की तौफीक अता फरमाता है, और अल्लाह वाले गुनाह पर और अल्लाह की नाफरमानी पर डटे नहीं रहते। क्या बात है, अंबिया की क्या शान है, अल्लाह वालों की क्या शान है। हमारे साथ माशाल्लाह असद बदरी भाई भी मौजूद हैं। असद भाई, हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है? आज आप फैसलाबाद स्टूडियो में पहले सिलसिले में हमें छोड़ के चले गए इब्तिदा से ही। नहीं, इसको यूं कर लें कि पहले ही सिलसिले में मैं दूर से हाजिर हो गया। क्या बात है, क्या बात है, सोच का अलग अंदाज है माशाल्लाह। नया सिलसिला मुबारक हो, यकीनन हम खुद भी बड़ा एनर्जेटिक फील कर रहे हैं। इतनी खूबसूरत शख्सियत का जिक्र है, और उम्मीद है कि इनका जिक्र करेंगे तो हम पर भी रहमतों की बरसात होगी। क्या कहेंगे इस टॉपिक के बारे में, अंबिया किराम की शख्सियत के बारे में? मैं तो अब्दुल हबीब भाई, जब से इस सिलसिले का 12-15 दिन पहले से ही आपकी तरफ से हुक्म मिला था, हम तैयारी में थे। और सच्ची बात तो ये है कि वन ऑफ द वेरी ब्यूटीफुल प्रोग्राम, हम बहुत सारे प्रोग्राम करते हैं और मुख्तलिफ टॉपिक्स होते हैं, लेकिन जब हम बेस्ट अमंग द ऑल क्रिएशंस की बात करें और मखलूक में वो तबका कि जिसको अल्लाह पाक ने सबसे अफजल करार दिया, तो सच्ची बात तो ये है कि अपनी लर्निंग होती है और इनसे मोहब्बत, इनके बारे में स्टडी करना, ये बड़ी खूबसूरत बात है। जैसे कि आपने इब्तिदा में कहा, अगर हमारे व्यूवर्स हमारे साथ इस तरह चलते रहें कि जिस नबी का अलैहिस्सलाम तज़किरा उसको पढ़ते रहें, तो आप यकीन करें ये जो मोहब्बत है अल्लाह के कुर्ब का बहाना है। और एक और पहलू है, वो ये है, हम सबके जहन में होना चाहिए। देखिए, इंसान की सबसे बड़ा कमाल यह है कि वो अल्लाह तबारक व तआला की मारिफत हासिल करे। जितनी भी इबादत हैं, जितनी भी नेकियां हैं, गुनाहों से बचना है, नफ्स की मुखालफत है, नेक काम करना है, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, या इब्तिदा इस्लाम से आज तक या क़यामत तक के जितने भी आमाल हैं, उन सब का मतमय नज़र क्या होता है कि बंदा अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में मुकर्रब हो जाए और उसके मारिफत हासिल करे। और अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम मखलूक में सबसे ज़्यादा अल्लाह तबारक व तआला की मारिफत रखने वाले लोग हैं। तो कितना एक खूबसूरत तबका है कि ये वो लोग हैं कि जो मखलूक कितनी है, 18,000 आलम, हर आलम में अरबों करोड़ों की तादाद के अंदर मखलूक़ात हैं। अल्लाह पाक ने क्या कुछ तख्लीक फरमाया, लेकिन
उसमें अंबिया किराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम रब की सबसे ज्यादा मारिफत रखने वाले हैं। और फिर इनके अंदर जो अल्लाह पाक ने दर्जा बंदी फरमाई, तिलकर रुसुल फद्दलना बअदहुम अला बअद, अल्लाह पाक ने खुद इरशाद फरमाया, मफहूम ये है कि ये अंबिया हैं, इनमें से हमने बास को बास पर फजीलत अता की है। और ये जो फजीलत है, इसका उलमा ने एक सबब ये इरशाद फरमाया कि जो नबी अल्लाह तबारक व ताला का जितना ज्यादा मुकर्रब है वो दीगर के मुकाबले में उतना ही ज्यादा अफजल है। और इन तमाम के दरमियान हमारे प्यारे आका, हमारे आखिरी नबी प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम चूंकि अल्लाह पाक की सबसे ज्यादा मारिफत रखने वाले हैं, इस सबब से भी प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अल्लाह पाक के सबसे बरगुज़ीदा और मखलूक में सबसे अफजल मखलूक हैं। तो जब भी हम अंबिया किराम की सीरत का मुताला करते हैं तो हमारी मोहब्बत इनके साथ बढ़ती है। और एक इस्लाम की एक लड़ी है, देखिए इस्लाम जो है वो कदीम तरीन मजहब है, आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर क़यामत तक इसने बाकी रहना है। और इस इस्लाम को जो कैरी ऑन किया गया, अल्लाह तबारक व ताला ने मखलूक तक जो अपने अहकामात और दीन को पहुंचाया, उसके अंदर जो मखलूक और रब के दरमियान वास्ता है वो ये इरफानी और सबसे अफजल गिरोह है। तो अल्लाह तबारक व ताला के इन अंबिया और हमारे जो आका हैं, ये सब इनकी जो मारिफत है और इनके बारे में मालूमात हैं, वो हमारे लिए अल्लाह तबारक व ताला के कुर्ब का बाइस है। सुभान अल्लाह, बड़ी प्यारी आपने बात की असद भाई। आपने भी इंटरनेशनली सफर भी किया, नजर भी रखते हैं आप हालात पर। दुनिया के दीगर मजाहिब में अनफॉर्चुनेटली उनकी तालीमात तो शायद ये नहीं होंगी, मगर तालीमात भी तहरीफ कर दी गई। तो वो अपने नबी से तो मोहब्बत करते हैं मगर बाज अंबिया से डिसरिस्पेक्ट करते हैं। मगर इस्लाम की शान देखें कि तमाम अंबिया से मोहब्बत हमें इस्लाम सिखाता है और उनकी रिस्पेक्ट सिखाता है। और अंबिया की बेअदबी को ईमान से खारिज होने का सबब भी कहा गया, और बंदा किसी सूरत में बाहर भी अपने ईमान से हो सकता। तो ये इस्लाम की खूबसूरती कहेंगे। जी, जब आप ये नाम ले रहे थे ना अंबिया किराम के कि जिनका कुरान में तज़किरा हुआ और तौरात शरीफ का आपने जिक्र किया, तो मैं ये गौर कर रहा था कि अल्हम्दुलिल्लाह ये अंबिया किराम जो पहले उम्मतों में हुए, आज भी इस्लाम के अंदर, यानी कि इस वक्त प्यारे आका की जो उम्मत है वो गुज़श्ता अंबिया के नामों पर अपने बच्चों के नाम रखते हैं। इसका क्या मतलब है कि हम दिलो जान से तमाम ही अंबिया किराम को मानते हैं, बल्कि किसी एक नबी का इनकार। बल्कि कुरान ने इब्तिदा में ही इरशाद फरमाया, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब व युकीमूना अस्सलात व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैका वमा उन्ज़िला मिन क़ब्लिका व बिल आखिरति हुम यूक़िनून। कुरान उन लोगों के लिए हिदायत है जो गैब पर ईमान रखते हैं, नमाज कायम करते हैं, अल्लाह के दिए में से उसकी राह में खर्च करते हैं। और उसके बाद ये फरमाए कि महबूब जो आप पर नाजिल हुआ उस पर ईमान लाए, और जो आपसे पहलों पर नाजिल हुआ, जो पहले नाजिल किया गया यानी कि अंबिया रसूल पर, उस पर भी ईमान लेकर आए। कुरान की इब्तिदा है, दूसरी सूरत है, पहली जो चंद आयतें हैं, इब्तिदा ही में अल्लाह पाक ने हमें, हमारे लिए बराह रास्त हुक्म है, इरशाद फरमाया कि महबूब जो आप पर नाजिल हुआ और जो गुज़श्ता अंबिया पर नाजिल हुआ, उन सब पर ईमान लाना ये हिदायत की गारंटी और वारंटी है। लिहाजा अंबिया किराम से मोहब्बत, और बल्कि मैं तो अभी ये चंद नाम ऐसे थे जो उमूमन हमारे यहाँ नहीं रखे जा रहे, तो मैं नियत ये कर रहा था कि इन अंबिया किराम के नाम भी हमसे अगर कोई पूछता है बच्चों के नामों में तो हमें शामिल करना चाहिए। तो इससे हमें एक और जो है ना डायमेंशन मिलेगी और पता लगेगा कि ये भी अल्लाह के अंबिया थे और इनके नामों पर हमारे बच्चों के नाम होने चाहिए। अंबिया की बात हो रही है तो आइए मौजज़े के बारे में भी जानते हैं। What is the definition of मौजज़ा, मिरेकल किसको कहते हैं? नबी के दावाए नबुव्वत में सच्चे होने की एक दलील यह है कि वो अपनी सच्चाई का ऐलानिया दावा फरमाकर ऐसे उबूर जाहिर करने का जिम्मा लेते हैं जो आदतन महाल हो, और मुनकिरों को भी ऐसे उबूर जाहिर करने की दावत देते हैं। अल्लाह ताला अंबिया के दावे पर तो वो महाल आदि अमर जाहिर फरमा देता है, और मुनकरीन इस सब को जाहिर करने से आजिज रहते हैं, और उसी को मौजज़ा कहा जाता है। ये याद रहे कि ये बात यकीनी, कतई और हतमी है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम की तशरीफ आवरी के बाद अब कोई नया नबी हरगिज नहीं हो सकता, कतई और हतमी है। लिहाजा अब अगर कोई नबूवत का दावा करे तो वो यकीनन झूठा है। मौजज़ात अंबिया के बहुत सारे हमें किताबों में कुरान के जरिए भी मिलते हैं। अंबिया और मुरसलीन के कसीर मौजज़ात का जिक्र है, जैसे हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी जो पहाड़ से निकली थी, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की असा का सांप बन जाना, उनके हाथ का रोशन हो जाना, पत्थर पर असा मारा तो पानी का जाहिर हो जाना, और इसी तरह दरिया पर असा मारने से उसमें खुश्क रास्ते बन जाना, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का दूध पीने के दिनों में कलाम करना, मुर्दों को जिंदा करना, पैदाइशी नाबीना जो थे या कोढ़ के जो मरीज थे उन पर दम फरमाते दुआ करते तो उनको शिफायाब कर देना। और सुभान अल्लाह आकाए मदीना हमारे आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजज़ात बेशुमार है। चांद को दो टुकड़े करना, सफरे महराज, सुभान अल्लाह, उंगलियों से पानी के चश्मे जारी हो जाना, जानवरों और लकड़ी के सुतून का कलाम करना, परिंदों का फरियाद करना, दरख्तों और पत्थरों का सजदा करना। सैयदी आला हजरत क्या खूब लिखते हैं ना, अपने मौला की है बस शान अज़ीम, जानवर भी करे जिनकी ताजीम, संग करते हैं अदब से तस्लीम, पेड़ सजदे में गिरा करते हैं, उंगलियां पाई वो प्यारी प्यारी, जिनसे दरियाए करम है जारी, जोश पर आती है जब गमखारी, तिश्ने सैराब हुआ करते हैं।